you right now do not have any structure. So आपको unanchored होना, it's very common. It's very common to feel lost. We'll be touching on the people who are in their 20s. Okay. So if I talk about myself, there are phases where I feel like pressured, directionless, and there are people who are, more like ambitious, wanted to do so much things at the one point of time. So I like to know, like, how can someone deal with it? As per the people I coach, as per my clients, जो भी उनके experiences रहे हैं, this is a very common finding of mine कि they are generally lost and have a lot of identity crisis. So I talk about something which is known as unanchored identity. What is unanchored identity? It is simply, somebody moving away from their own true self. जैसे कि 20s is a time for everyone जब सब लोग अपने आप को डिस्कवर करते हैं, and it's completely fine. If I talk about modern science, it talks the same thing. If I talk about scriptures, if I talk about modern or एंशियंट फिलोसफी, सभी इस 20 से लेके 30 के स्पेशल पीरियड को एक डिस्कवरी फेज बताते हैं. I don't like to call it a experimental kind of a time because experiments, seem like एक negative term भी हो जाता है और लोगों के दिमाग में आता है that they can do anything without any repercussions. So let's come back to the unanchored self. लोग अपनी आइडेंटिटी से इतना दूर चले जाते हैं या फिर डिस्कवरी के थ्रू इतना ज्यादा कहीं साइडलाइन हो जाते हैं दैट दे फॉरगेट दैट दे नीड टू कम बैक, दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके भी अपने गोल्स हैं, वो क्या है, दे मैटर. ऐसा नहीं है कि उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके गोल्स ही सब कुछ हैं. कम बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ. अब ये करना क्या है, इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट होता है वो होता है द गेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस. Ronit, I would like to ask you as well कि you must be having a lot of expectations right now, right, from yourself. People must be having, तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे एक्सपेक्टेशंस है, एंड देन दिस यू कैन से प्रेशर आसपास के लोगों को देख के, एंड इट हैज इंक्रीज्ड विद सोशल मीडिया, राइट? सो सेम हैपेंस विद एवरीवन इन दिस टाइम विच वी आर लिविंग, अनअवॉइडेबल है. सो जो ये एक्सपेक्टेशंस है, सबसे पहले ये देखना होता है कि आप कौन हो. डिस्कवर योर सेल्फ, कम बैक टू योर इनर सेल्फ, एंड थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट we will deep dive more on this, how to discover this inner self part. Surely. Paritosh, you mentioned about, some expectation parents have on their child. And you also mentioned about the social media. So is it more like कि हम लोग खुद ही अपने लिए एक केज बना लेते हैं उस चीज़ का कि ये सामने वाला बंदा सोशल मीडिया देखकर एक जजमेंट ले रहा है कि वाओ इसकी लाइफ थोड़ी बढ़िया है, इसकी लाइफ ज़्यादा एक्साइटिंग है, एंड वो वाले सिनेरियो में जाकर यू कीप ऑन सेल्फ डाउटिंग कि मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही है, बट एक दूसरे की लाइफ को देख के जजमेंट लिया जाता है एंड वो हम उसके अंदर केओस के अंदर फंस जाते हैं. डू यू थिंक सोशल मीडिया इज मोर लाइक अ कल्प्रिट? This is pretty common nowadays. हमें इसे न्यू नॉर्मल भी बोलना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा इसकी पावर कम हो. इस विलनाइजिंग थिंग को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा दैट हम लोग कंपैरिजन से बड़े परेशान हैं, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पावर ही कम हो जाए, एंड सेकेंडली इसको एट द सेम टाइम इरेडिकेट करने के लिए मेजर्स भी करने पड़ेंगे. So a lot of the people come to me and they have this similar issue which we talked about कि वो लोग कंपेयर बहुत करते हैं. ऐसा उन्हीं के साथ नहीं है. Adults like me also compare their achievements from their friends. But if you have your healthy boundaries, first off, healthy boundaries का मतलब है कि you understand कि ये मुझे dissociated way में करना है. Whatever I'm watching, whatever I am looking at, जो मैं लाइक कर रहा हूँ, जो मैं लोगों को कमेंट कर रहा हूँ, जैसे ही
मैं उस काम को खत्म करता हूँ, आई विल नॉट लेट इट इम्पैक्ट मी, आई विल नॉट लेट इट अफेक्ट मी, मैं उसे अंदर नहीं उतारने वाला. दैट इज डिसोसिएटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्क. You need to understand that if I'm like very irritated Mm-hmm. and somebody comes to me, okay, let's have a selfie, Mm-hmm. I'll immediately smile, right? Mm. Even if I slap somebody right in their face, next time somebody comes, Arey, take photo ho jaye, I'll give them the wonderful smile. So tell me, is it not fake? Is social media all the selfies? Is it not Right. fake? Mm. Right? I'm sure तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा. तुम्हारी लड़ाई हुई या फिर you had a bad phone call or even had a bad breakup. Next day, you're like full on gymming and full on motivated. You're putting out your anger on that physical activity. And then तुमने एक फोटो ली, उसको अच्छे से एडिट किया और उसको सोशल मीडिया पे पुट किया, राइट? People will think that you are really motivated, but you yourself know that you're broken right now. So the only thing to not let it be affected, not let it inside of you, वो ये है कि आप ये मान के चलिए कि आई एम वेरी डिसोसिएटेड जो भी मैं इससे देख रहा हूँ. कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ. मैं आज तक ये चीज करता हूँ. सेकेंड थिंग यहाँ पे ये आती है, टू नॉट लेट इट इनसाइड ऑफ यू अफेक्ट यू, दिमाग के साथ में ना खेले वो, इज अंडरस्टैंड योर वैल्यू सिस्टम. नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर एनीवन. ये एज अ हीलर मैं भी करता रहता हूँ, एज अ थेरेपिस्ट मैं अपने पर भी जो है ट्राई करता रहता हूँ. Mm-hmm. एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग आई लेट माय क्लाइंट्स डू. आई हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर वैल्यू सिस्टम. वैल्यूज सिंपली वो है कि किसी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज आर, मेरे लिए फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्पिंग अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, डूइंग अ नोबल वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्रूवमेंट ऑन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसी चीजें, ऐसे वैल्यूज आप अपने लिए देखिए एंड जस्ट मार्क द थ्री ऑफ देम एज द हाईएस्ट. जस्ट नो कि ये तीन वैल्यूज मेरे लिए हाईएस्ट. ना वो आपको कंपेयर होने में ही हेल्प करने वाली है, वो आपको हर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाली है. दिस इज द वंडरफुल थिंग, दिस इज द लाइफ चेंजर. Cool. Like, I totally agreed with the points which you have mentioned. आप लोगों को मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा. आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू मेक. अगर आप इसी तरीके की कॉन्वर्जेशन पसंद करते हैं एंड मैं हर वीक ट्राई करता हूँ कुछ एक्साइटिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मेरे दोस्तों को दिखाइए. इसी तरीके के मनोरंजन टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा, ये मेरा वादा है. इफ़ आई टॉक अबाउट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करा, पीपल हु आर इन देयर 20s, जस्ट आफ्टर द कॉलेज नो वन प्रिपेयर्स कि जस्ट रियल लाइफ में एंटर होते हैं एंड यू हैव जस्ट हैव टू एक्सप्लोर थिंग्स. कमाने के लिए चीज़ें सोचनी है, कोई जॉब पर्सपेक्टिव से सोच रहा होता है. फिर भी ना कहीं उनको लगता है कि वो एक एम्प्टीनेस है कि दैट्स नॉट आई वांटेड. तो कैसे कोई पता कर सकता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि इससे पता कर सकता है वो कि उसको ये चीज़ नहीं करनी है, ये वाली चीज़ पकड़नी चाहिए, सो दैट वो एक फुलफिलमेंट की तरफ बढ़े. आई थिंक ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक, देयर इज अ सेल्फ अवेयरनेस दैट कम्स. नॉट जस्ट सेल्फ अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ, सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद द पीपल ऑफ सिमिलर एज अराउंड यू. जेन जी, जेन अल्फा, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, आपने एक सेम चीज सब में देखी होगी. स्पिरिचुअली सब लोग काफी फार होते हैं इस समय पे. Nobody is Agreed. like, yeah, nobody is like interested in wearing kurta just for the sake of it, या फिर wearing your traditional outfit, whatever it may be, going to your place of worship, temples, mosques, or churches, right? And following simple rituals जो कि आपको अभी कुछ harm भी नहीं करेंगे और आप
आपके ऊपर ज्यादा जो है टाइम भी नहीं लगेगा उन्हें करने में. व्हाट हैपेंस इन दिस टाइम विच इज वेरी मैजिकल टाइम इज यू आर एक्सपोज्ड. पहले आपके ऊपर छत थी अ, अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की. आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर सुबह सुबह प्रेयर्स होती हैं. Hmm. कॉलेजेस के अंदर भी सुबह सुबह कोई ना कोई रिचुअल्स होते हैं. बट आफ्टर दैट फेज इज ओवर, अभी यूर ऑन योर ओन. अभी तक एज अ स्टूडेंट आप उस इंस्टीट्यूट या उस एजुकेशन बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ में ऑपरेट कर रहे थे. यू राइट नाउ डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर. सो आपको अनएंकर्ड होना, इट्स वेरी कॉमन. It's very common to feel lost. And that's where these spiritual practices, these simple little things, knowing your culture and being one with your roots, ये काम आता है. So tell you what happened with one of my friends is, uh, they were in their like 25, 26 years of age. और वो इतने फेथलेस हो गए थे कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने वाला, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान एथीस्ट बन गया था. विद इन Oh. 6 months दे Hmm. गॉट कन्वर्टेड बैक टू थियज्म, या फिर बिलीवर बन गए वो. हाउ डिड दैट हैपन? बिकॉज जैसे ही उन्होंने नई चीज को अट्रैक्ट किया, नई चीज को अडेप्ट किया, पुराने चीजों ने उन्हें चैलेंज किया. यहाँ पर एक अच्छा काम हुआ कि वो पुरानी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी उसके लिए. नाउ ही इज बैक टू हिज वंडरफुल बिलीवर सेल्फ. एंड अगेन ही हैज सम न्यूअर इम्प्रूव थिंग्स टू डू. जैसे कि वो सुबह सुबह रीडिंग करता है, जैसे कि सुबह सुबह तैयार होके मंदिर जाता है. आई एम नॉट टेलिंग एवरीवन टू बी अ बिलीवर और समथिंग, बट एटलीस्ट हैव connection to your roots, at least practice some rituals, at least have a knowledge of your tradition, जिससे कि आपको ऐसा नहीं फील हो कि एक वाइल्ड सैटेलाइट है जो कि अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल गई है, एंड इट्स ओनली राइट नाउ अ स्पेस डिब्री. Yeah, I think I totally agree with this point क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस समय इस समय तो पैसा कमाना ही है. मोर लाइकली आई नेवर थॉट ऑफ कि मतलब थोड़ा बहुत मैं भी टाइम निकालता हूँ स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हु आर इन देयर 25 एज 24 एज मोर लाइकली दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स मेकिंग मनी. Yeah, and it's not a bad thing, it's a wonderful thing. You need money, it's very important tool. बट एट द सेम टाइम कोई नहीं कहता कि पैसा कमाओ तो अपने स्पिरिचुअलिटी को भूल जाओ, अपने रूट्स को भूल जाओ. You do work on money and eat. You do work for money and have a healthy lifestyle, work out. तो ये सारी चीजें क्यों नहीं? You know what happens with the absence of all these things in your life is, आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, लोनलीनेस ज्यादा होता है, गलत डिसीजंस ज्यादा होते हैं. एंड देन यू विल सी दीज पीपल जो कि अल्टीमेटली आ रहे हैं उन्हीं की शरण में. जैसे कि दे आई नो न्यूमरस नंबर ऑफ पीपल जो मॉन्क बन चुके हैं बिकॉज दे वर वेरी इग्नोरेंट इन देयर डिस्कवरी फेज विच इज द 20s. तो अभी उसको मेकअप करना उनके लिए, उनको वही रास्ता दिख रहा है. सो अगेन यू डोंट नीड टू बिकम अ monk. You can be a spiritual practitioner and hustling and working and doing all of the things जो कि एक जनरल 20s में जो बंदे होते हैं वो करते हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट? क्योंकि हमारे लिए तो मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है वो अपने फॉलोअर्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहता है. देर आर फ्यू केसेस जहाँ पे फॉलोअर डिक्लाइन की वजह से देर इज़ अ गर्ल और बॉय committed suicide. So these are some type of things which are going on, people who are in their 25th and 24th. So what's your take on this detachment thing? So wonderful question again. सबसे मेन बात यहाँ पे ये आती है, डिटैचमेंट जब भी आप करेंगे तो आप कहीं तो जाएंगे, कहीं तो फोकस करेंगे. एक चीज से अलग होंगे, वेर यू विल बी फोकसिंग ऑन? So the answer is you will be focusing on your karma, your work, the righteous thing जो कि आप करना चाहते हैं. गीता में भी ये लिखा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. मतलब कि
अगर आप अपने कर्म पर फोकस करोगे तो ही आप जो है डिटैच रहोगे गोल्स से। अगर आपको मैं कहूं चैलेंज दिस सिंगल लाइन इफ यू कैन, कि सबसे ज्यादा इश्यूज, स्ट्रेस ले लीजिए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ले लीजिए, वो गोल के साथ में ओवर अटैचमेंट की वजह से ही होता है। हम्म। कैन यू थिंक ऑफ एनी सिनेरियो जहां पे बंदा जूझ रहा है मेंटल हेल्थ इशू से और कोई ना कोई गोल से अटैच नहीं है वो? हम्म। कोर्स कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, उसे मिल नहीं रहा है। राइट। सो दैट टाइम एक कॉमन चीज है, वो जो नहीं कर रहा है वो है अपने एफर्ट्स। नो मैटर योर टाइम, नो मैटर दुनिया कहाँ जा रही है, हमें काम तो करते रहना है, कोई ना कोई काम करते ही रहना है। जो भी हम परस्यू कर रहे हैं, जो भी हमारा डेली रूटीन है, जो भी हमारा डेली सेल्फ केयर है, या जो भी हमारा डेली हसल वर्क है, इट हैज टू गो ऑन। कुछ चीजें विजिबल होती है। आप 4 दिन जिम नहीं गए, आपका मसल मास कम हो जाएगा, आपकी गेन्स कम हो जाएंगे, राइट? तो वहां पे इंसान को इजीली रिग्रेट होता है। बट जहाँ पे गोल अचीवमेंट की बात आती है, वहां पे वो बार्गेन कर लेता है कि मैंने 1 महीने भी अगर इस चीज पे काम नहीं किया तो चलेगा। सो गेटिंग ओवरली अटैच्ड विद एनी गोल, चाहे वो आपके सब्सक्राइबर्स हो, चाहे वो आपका वर्क हो, आपका कोई प्रोग्रेस हो, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। हाउ कैन यू सी, वी ऑल एज अ वंडरफुल जनरेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल, हम लोगों ने कोविड देखा है। क्या आपने प्रेडिक्ट किया था कोविड आएगा? नो। मैंने भी नहीं किया था। सो यहाँ सबको एक चीज समझनी होगी, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एवरीथिंग। व्हाट वी कैन डू इज कीप ऑन डूइंग योर राइटियस वर्क। हम्म। सिंपल। आई थिंक मोर लाइकली पीपल फोकस ऑन रिजल्ट्स, कि भाई ये अगर हम ए इनपुट डाल रहे हैं तो बी शुड बी द रिजल्ट, एंड यहाँ पर बी करेक्ट। किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। लाइक जो भी इनपुट्स देते हैं, कोई काम काम कर रहा होता है, वी नेवर नो कि बी पॉइंट मिलेगा भी नहीं या मिलेगा कि सही, पता कुछ भी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है लाइक। दैट इज ट्रू, एंड यू नो दिस इज नॉट इजी। डूइंग दिस, हैविंग दिस मेंटालिटी इज नॉट इजी। ये एक स्किल है। मैं आज भी इस स्किल पर काम कर रहा हूँ, मुझे आज भी डाउनफॉल होते हैं। But it does not mean the philosophy is bad. It only means that you have to keep on working on this philosophy over and over again. अगर आपका पेट भर जाता है तो खाना थोड़ी छोड़ देते हो नेक्स्ट डे, यू कीप ऑन ईटिंग नेक्स्ट डे, राइट? हम्म। सिमिलरली ये एक स्किल है, इस पे वर्क करते रहना होता है। एंड देयर विल बी टाइम्स जब चीजें डाउन जाएंगी जाएंगी। Come back to your original self, come back to doing things, come back to pursuing जो भी आप कर रहे हो, because अभी जो टाइम्स है, अंडरस्टैंड वन थिंग, ये कन्वेंशनल वर्किंग के टाइम्स नहीं है। A lot of AI experts will tell you so, a lot of ट्रेंड जो स्टडी करते हैं वो आपको बता देंगे कि दिस इज नॉट योर टिपिकल 9 to 5 थिंग जहाँ जो आप फोकस करते हैं। I don't work 9 to 5 even. So doing your hustle is completely fine. Be detached a little bit from the outcome. It'll work. हम्म। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस कि समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बी डिल्यूजनल, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही रिजल्ट आना चाहिए अगर हम ये वाला इनपुट दे रहे हैं तो समटाइम गो विद द फ्लो इज़ द बेस्ट चॉइस। Exactly. Wonderful thing. और I was about to say the same thing that see, कभी कभी होता है कि आपने एक एग्जाम को फाइट किया, राइट? यू डिडंट गेट इन, बट वो प्रिपरेशन, वो वो डिसिप्लिन, वो उस चीज को परस्यू करने के अंदर जो इतने लर्निंग्स आपने लिए हैं, हम्म। आप उसे आप उसे कंसिडर ही नहीं करते, राइट? व्हाट अबाउट योर परस्यूट ऑफ हैविंग दैट रूटीन? आपने रोटी बनाना सीखा, खाना बनाना सीखा, मैनेज करना सीखा, नए शहर में आप गए। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ समबडी हु वांट्स टू फाइट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो कितना कुछ सीख लेता है, वो कहीं ना कहीं काम आता है। और वो नॉलेज भी काम आती है, उसके साथ में स्किल्स भी काम आती है।
everything is put to work. Just have patience. So like I have just personal question to ask as मेरे मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से डेराइव होता है ये क्वेश्चन. लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब है ना हमने कुछ, जैसे कि मैं एम्बिशियस गाय हूँ, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो मेरी होगी वो भी बहुत एम्बिशियस होगी. एक टाइम पे थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें करने को मन करता है, बट वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलती है कि मतलब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. पहले से ही सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, एंड वो जो प्री रिजल्ट हमने सोच कर रखा हुआ होता है वो नहीं मिलता है, तो थोड़ा डायरेक्शन लेस भी हो जाते हैं. तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि तीन चार चीज़ें ट्राई करके एक बार देख लो, या फिर पहले से जजमेंट लाने लग जाओ कि अगर ABCD से मैं चारों चीज़ एक साथ कर रहा हूँ, या फिर टाइम निकाल निकाल के कर रहा हूँ. गुड. सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है रनिंग बिहाइंड परफेक्शनिज्म. ठीक है. सो इफ यू आर वेरी मच डिटैच एज वी टॉक अबाउट विद द रिजल्ट्स, यू विल बी लेस परफेक्शनिस्ट. अब परफेक्शनिस्ट पहले तो एक क्वालिटी की तरह दिखाई जाती है कि ही इज अ परफेक्शनिस्ट. ही लाइक्स टू डू वेरी वेरी वंडरफुल थिंग्स, और वो कोई गलती नहीं छोड़ता है उसके अंदर. बट वहां हम लोग एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं. हम्म. और अगर हम परफेक्शनिज्म की वजह से चीजें ट्राई ही नहीं करेंगे तो हम कुछ शुरू ही नहीं कर पाएंगे. शुरू नहीं करेंगे तो लर्न नहीं कर पाएंगे. लर्न नहीं करेंगे, वापस इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कुछ अचीव नहीं करेंगे. राइट. सो दिस इज अ सिंपल फैक्टर ऑफ बीइंग वेरी परफेक्शनिस्ट अबाउट योर रिजल्ट. जब आपने सोचा मेरा यही रिजल्ट आना चाहिए, मैं यही चीज को एम करूंगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने एक साल के अंदर यूट्यूब चैनल शुरू करके 10,000 सब्सक्राइबर नहीं कर लिए तो मेरा यूट्यूब वेस्ट है. इट डजंट वर्क दैट वे. लाइक दैट इज ओवर परफेक्शनिज्म. तो कोई भी गोल हो उसे डिटैच्ड वे में करते हुए, परफेक्शनिज्म से दूर रहते हुए जब आप कोई चीज करते हो, इट विल डेफिनेटली बी फ्रूटफुल. Forget about the results. Do it for the wonderful process. Do it for the love, for work. उस चीज को इसलिए कीजिए कि वो आपको करना पसंद है. As simple as that. टोटली एग्रीड. मुझे ऐसा भी लगता है कि है ना, पीपल जस्ट कॉलेज के बाद जॉब ले लेते हैं, एंड दे आर जस्ट प्लानिंग टू सेटल डाउन कि बस थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ जाएगी हर साल एंड वी आर गुड टू गो. क्या लगता है कि मोर लाइकली जल्दी जल्दी सेटल होने पे सोचना चाहिए, या फिर जब 20s के अंदर हैं, बिफोर 28 तक पहुंचने से पहले पहले काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए? व्हाट्स योर टेक? Okay, so यहाँ पे एक फैक्टर आता है that everyone comes with a different background, different experience and different value system. Okay. Uh, Having a 9 to 5 stable job, पहले जल्दी सेटल हो जाना, 8 साल अच्छे से काम करना, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देना, इट्स नॉट एन इशू. ये तो हर जगह पॉजिटिव थिंग है. बट अगर आप ऐसे इंसान है जो सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जा रहे हैं, तो वो वाली लाइफ आप नहीं परस्यू कर पाएंगे. आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ को अलग शेप और डायरेक्शन में लेके जाएं. उसको प्रॉपर शेप दें, और वो शेप आपके हिसाब से होगी. इट कैन नॉट बी लाइक अ शेप ऑफ somebody else's life. So here, that like we talked about the game of expectations, the game of societal expectations, stay away from that. जितना खुद को जानोगे, you will be more confident कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं 9 to 5 कर रहा हूँ और सही है. सी स्टार्टअप ओनर अपने बेटे को 9 to 5 के लिए वो कभी एनकरेज नहीं करेगा. और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो अपने बेटे को 9 to 5 के लिए ही जो है कॉन्फिडेंट बनाएगा. बट neither of them are wrong and neither of them are right. It is actually the child who has to decide for himself. लाइक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पीपल हु आर जस्ट आफ्टर द कॉलेज, एक जॉब तो करना ज़रूरी है, क्योंकि है ना यू गेट टू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम कम्युनिकेशन टू एवरीथिंग, फ्रॉम मैनेजिंग द टीम. एक जॉब तो करना ज़रूरी है, बट जस्ट आफ्टर दैट जो पीपल हु आर मोस्ट लाइकली एम्बिशियस, यू कांट केज दैम. लाइक मैंने 2024 में अपनी जॉब क्विट कर दी थी बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे को अलग अपना खुद का काम करना है, एंड आई हैव ट्राइड आउट मैनी थिंग्स. बट वन थिंग विच आई गेट टू नो एंड मोस्ट लाइकली आई रिकमेंड टू पीपल, जॉब करना ज़रूरी है एक बार तो. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
You're completely right in that. And like Ronit, you're doing wonderful. People can do wonderful things. But सबसे पहले आपको सब कुछ ट्राई करना जरूरी है. दिस अ वेरी वंडरफुल स्टेज ऑफ लाइफ. जब Hmm. आप, जैसा मैंने कहा, एक इंस्टीट्यूशन बॉडी के रूटीन के हिसाब से काम करते हो. अनएंकर्ड होना इट्स नॉट अ इजी स्टेट. सो जब आप ऐसे स्टेट में होते हो, अनएंकर्ड होते हो, हैविंग अ कंपनीज रूफ इज अ ग्रेट थिंग. इसके साथ में स्किल्स आते हैं, इसके साथ में अडेप्टेशंस आते हैं. आप बाउंड्रीज डेवलप करना सीखते हैं, असर्टिव होना सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होता है. there's a lot more skills, like I cannot list like all of them. You don't know what you'll be learning over there. And then आप अपना mind makeup कीजिए, and then you can go back inside the job after you're like done experimenting. When you were in your 20s, ये चीज़ें, ये टर्म्स एग्जिस्ट करती थी, कंपैरिजन, सोशल मीडिया, रील्स पे देख के कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता था? देखो, comparison was never a way. हाँ. जहाँ सोसाइटी है, जहाँ चार लोग हैं, और हम्म. कंपैरिजन तो है ही है. चाहे पेरेंटल कंपैरिजन हुआ, चाहे फैमिली की साइड से, चाहे दोस्तों की साइड से, कंपैरिजन वाज ऑलवेज देयर. सोशल मीडिया मेरे टाइम पे इवॉल्व हो रहा था. आई एम अ मिलेनियल. सो मेरे टाइम पे सोशल मीडिया इवॉल्व हो रहा था. सो वी अंडरस्टूड द ट्रेंड ऑफ हाउ द थिंग्स आर मूविंग. हम लोगों ने उस ग्राफ को इमेजिन किया. हमारे लिए चीजें सेटअप नहीं थी, हम लोगों ने सेटअप होती हुई देखी. राइट. सो सो वी अंडरस्टूड कि किसको कितना सीरियसली लेना है उस टाइम पे. सो दैट it was not our reality. It is Gen Alpha and Gen Z's reality right now, but हम्म. it was not our reality. इसीलिए शायद millennials I find very dissociated from social media, a lot of them. So हमारे टाइम पे वो सोशल मीडिया का कंपैरिजन इतना प्रिवेलेंट नहीं था. But yes, comparison is there. Social media elevates that comparison. And then you have to take necessary measures, which we can later talk about. राइट. So, if I ask you how 30s, can you walk me through the how 30s should be like? Is it more like कि stability पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर you are in that feel कि जैसे 20s वाले लोग होते हैं ना, कि मतलब तीन चार चीज़ें कर लेते हैं, और 30s वाले आर मोर लाइक कि आप थोड़ा स्टेबिलिटी चेस करते हैं? Sure. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ट्वेंटीज होते कैसे. आई डोंट वांट टू केज एनीथिंग, या फिर मैं किसी चीज के लिए एक डेफिनेशन तो नहीं देना चाहता. बट हम्म. मैं एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ, तो पुट पीपल, लोगों का वो सरप्राइज इफेक्ट और वो शॉक हटाने के लिए. ओके. सो ट्वेंटीज इज द टाइम जहाँ पे यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ डिस्कवरी. यही टाइम है सोलो ट्रैवल का. यही टाइम है सस्ती चीप थ्रिल्स कर लेने का. यही टाइम है जहाँ पे आप अपने हॉस्टल्स का स्टे लो. आप जहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे चीपेस्ट ऑप्शंस ढूंढो, राइट, rather than spending a lot of money, because you can adapt very easily. यही समय है जब आप अपना सेल्फ केयर शुरू करते हो, डिफाइन करते हो, और आप लेटर ऑन उस चीज को बेटर शेप में लेके आते हो. हम्म. और ट्वेंटीज इज द राइट टाइम टू डू द हसल, सो दैट थर्टीज के अंदर आपकी लाइफ थोड़ी डिफाइन. सो ट्वेंटीज इज नॉट द टाइम जहां पे मैं एक जगह हसल करता हूँ, मैं 10 जगह हसल कर सकता हूँ. ओके. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, हम्म. these are not the conventional working times. आजकल 9 to 5 is not the only option. हम्म. People work at their own pace. मैं 1 घंटा अगर एक दिन में काम करता हूँ, that considers as a work, right? So हम्म. यहाँ पे आप 10 और चीजें साइड हसल के तौर पे कर सकते हैं. Now coming back to the 30s. हम्म. 30s is gonna be the time where you yourself will be looking towards stability, either in the mid 30s, either in the late, yeah, early 30s. And 30s will definitely give you the result जो भी आपने 20s में किया. But इसका स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. You हम्म. just have to keep on doing the right thing. If you are into, having a lot of romantic experiences, do that. If you are confused, then do not do that. If you are into a lot of jobs, keep on doing that. बट अगर आपको अंदर से डाउट आता है कि मतलब मेरा स्टेबिलिटी बाद में क्वेश्चनेबल हो जाएगी, देन डू नॉट डू दैट.
The best thing is listen to yourself, have the self awareness, spend a lot of time with yourself. See, यहाँ पे मैं एक जो है टॉपिक और लेके आना चाहूंगा, दैट इज Mm-hmm. योर डिसिप्लिन. योर डिसिप्लिन इज योर बिगेस्ट मोटिवेशन. आई थिंक इट्स नॉट अ फॉरेन कॉन्सेप्ट नाउ कि Mm-hmm. मोटिवेशन एक वॉलेटाइल चीज होती है. थोड़े दिन में वो गायब हो जाता है, थोड़े दिन में मोटिवेशन एग्जिस्ट नहीं करता, आपको वापस लेना पड़ता है. इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ वॉलेटाइल थिंग, discipline is a permanent kind of a motivation. So have a routine, develop something जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म तक काम करे. Whether it is your eating habits, whether it is your daily routine, have a discipline. When we talk about discipline, I'm not talking कि आप एक कर्नल या आर्मी मैन की तरह डिसिप्लिन हो. Mm-hmm. Have a simple, basic, healthy, sustainable, doable daily routine. Don't be too much stressed about things. And then add 1 hour, half hour of alone time, जिसमें कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसा कि लाइक nobody needs me. नोबडी, मुझे मुझे कोई फॉरेस्ट फायर्स नहीं हटाने, मुझे मुझे कोई कोई ऐसी चीजें नहीं नहीं करनी है कि मतलब nobody needs me right now. Only मेरा inner self that needs me. So if you are if you're doing all these things, then you're golden. सब बढ़िया काम Mm. करेगा. And do not put on very much stress about कि what future holds. Nobody knew कि आगे क्या होने वाला है जब कोविड आया था, and nobody knows आगे क्या होने वाला है आज. Mm. You know what it may occur. हम उस वाले एरा में आ गए हैं जहाँ पर व्हेन मतलब बहुत सारी सारी चीज़ें जो है ना बहुत फास्ट मूविंग हो गई है. अब जो 25 में पहुँच जाता है, 26 तक पहुँच जाता है, एंड दे हैवंट डन एनीथिंग कॉन्क्रीट. ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में ले लो, चाहे अदर पर्सपेक्टिव, चाहे हेल्थ वाइज ले लो, है ना. तो दे थिंक दे आर बिहाइंड, क्योंकि वो देखते हैं सक्सेसफुल हो गए हैं, 27 कोई मिलियनर बन गया बहुत अर्ली एज में, एंड सम आर ऑन दैट सेम स्टेज. तो क्या सेल्फ टॉक में चीज़ें करनी चाहिए कि आई नो कि कंपटीशन एंड वो कंपैरिजन वाला एस्पेक्ट होता है, बट हाउ कैन समवन डील विद इट कि व्हेन समवन फील्स दे आर बिहाइंड इन लाइफ. So I'm gonna break it down to variables. अगर एक बेसिक एल्जेब्रा की बात करें तो एल्जेब्रा में वेरिएबल्स आते हैं ना कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड, राइट? ये एवरीवन हैज स्टडीड इट. सो इंसान के लाइफ में भी ऐसे वेरिएबल्स होते हैं. किसी ना किसी वेरिएबल में वो बहुत अच्छा कर रहा होता है. किसी की हेल्थ अमेजिंग है, कहीं भी जा रहा है, बीमार ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी खा रहा है, पच रहा है, ही इज नॉट गेटिंग फैट, ही इज जस्ट गेटिंग फिट. वेदर ऑन द अदर हैंड देयर कैन बी समबडी जो कि बड़े अच्छे से खा रहा है, कॉन्शियस ईटिंग कर रहा है, फिर भी मोटा हो रहा है. बट दिस गाय, दिस फैट गाय इज इज लाइक किकिंग एस इन द करियर. गजब कर रहा है, वो मस्त पैसे कमा रहा है. वहीं वो फिट बंदा अभी इतने अच्छे पैसे नहीं कमा रहा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर वेरियस वेरिएबल्स इन लाइफ. कोई कुछ अच्छा कर रहा होता है किसी एक एस्पेक्ट के अंदर, जैसे कि रिलेशनशिप्स में बड़ा अच्छा है. नॉट टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक रिलेशनशिप्स ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट उसके उसके सर्कल, उसकी फैमिली, उसके एक्वेंटेंसेस. दे आर डूइंग वंडरफुल इन दैट एस्पेक्ट. somebody could be doing wonderful in the art zone, वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है. somebody सेल्फ डिस्कवरी में बहुत आगे चला गया. सो कंपैरिजन यहाँ पे एकदम अनकैनी हो जाता है, इलॉजिकल हो जाता है, बिकॉज इतने वेरिएबल्स हैं कि अगर हम सिंगल सिंगल कंपेयर करने लगे तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा. ऐसा होगा हाथी को चींटी से कंपेयर करना. इट इज दैट इलॉजिकल. ओके, राइट. नाउ व्हाट टू डू टू अगर आप लेटर इन लाइफ कुछ फिगर नहीं कर पाए, कोई एक वेरिएबल अभी भी आपका बैठ नहीं पा रहा है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट मैरिड वेरी अर्ली but get divorced, and then they see couples getting married and having kids and वो सोचते हैं मेरा क्या होगा. No, there were variables in your life which worked fine, but they are not fine right now.
सो सिंपली अपने 3 वैल्यूज को देखिए, अंडरस्टैंड व्हाट योर 3 वैल्यूज आर, आपके लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है। एंड माइंड यू, वैल्यूज टाइम टू टाइम आपके प्रायोरिटीज आपके वैल्यूज की चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे लिए पैसा कमाना अगर ज्यादा जरूरी है, तो मैं 5 साल बाद शायद अच्छा पैसा इकट्ठा कर लूंगा, तो मेरे लिए कुछ और ज्यादा जरूरी हो जाएगा, हम्म। राइट। इफ मेरे लिए रिलेशनशिप्स अभी ज्यादा जरूरी हैं, तो कुछ टाइम बाद अगर मैं किसी बीमारी से जूझ रहा हूँ, तो मेरे लिए हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो अंडरस्टैंड राइट नाउ व्हाट आर द 3 मेजर वैल्यूज जो कि आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके बेस पे देन you know uh, understand what good is happening in your life. You will understand a correlation between these 3 values and whatever good is happening in your life. This will give you a wonderful direction कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। I'll give you an example. Let's just say कि किसी की highest value है earning money. हम्म। Okay. Having security, मतलब पैसा है तो वो पड़ा भी रहे, वो ऐसा नहीं कि खर्च हो जाए। हाँ। और थर्ड है कि उसको थोड़ा सा फ्रीडम मिले। ओके, सो मनी, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, ये 3 चीजें उसे चाहिए। वो चाहता नहीं है कि वो बंधा रहे, वो फ्री रहना चाहता है। हम्म। सो लाइक जनरल एंटरप्रेन्योर। ओके, सो अगर वो 35 के अंदर है, और अगर वो अभी सिंगल है, बट ही हैज अ गुड बैलेंस इन हिज अकाउंट, ही हैज सो मेनी एक्सपीरियंसेस, ही हैज गॉन थ्रू सो मेनी कंट्रीज, तो अब अगर वो ये देखेगा कि उसकी लाइफ में अच्छा क्या चल रहा है, और अगर वो अपने 3 वैल्यूज को मैच करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अभी मुझे यही फोकस करना है। शायद मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए फैमिली की, मुझे मुझे एक अच्छे पार्टनर्स जो है मेरे लिए ढूंढना है, मेरा एक पार्टनर चाहिए मुझे, सो आई कैन लुक फॉर सम गुड मैचेस। सो ऑल दीज थिंग्स, ये आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। इफ यू पेन डाउन एनी ऑफ दीज थिंग्स, यू विल डेफिनेटली गेट क्लैरिटी, दैट इज माई गारंटी। लाइक मैं एक पर्सनल इंसाइट शेयर करना चाहूँगा फॉर द ऑडियंस एज वेल। मुझे लगता है जितनी जितनी भी सारी हमने कॉन्वर्जेशन करी अबाउट द लाइफ एंड द ट्रांजिशनिंग इन टू 20s टू 30s, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी बात आती है हमारे करियर ग्रोथ की एंड कहीं स्टक हो जाते हैं, तो आई थिंक सेल्फ टॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक कोने में बैठ जाओ, पेपर एंड पेन लेकर, एंड रोट द थिंग्स विच आर गोइंग नॉट अलाइन विद योर लाइफ, एंड जिसको चीज़ें सॉर्ट करने की ज़रूरत है उस पर ध्यान दो। मोस्ट ऑफ द पीपल वर लाइक कि ना इंस्टाग्राम पे सेल्फ हेल्प ग्रोथ कंटेंट देखना चालू कर देते हैं। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई है, पता नहीं क्यों लोग इतना वो कर रहे हैं उसको, सेल्फ हेल्प ग्रोथ को, क्योंकि एट द एंड आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की स्टेज पर हो, राइट। एंड जो कर्मा आप करके एक्सपीरियंस लेके सीखोगे, वो आपको कोई थर्ड पर्सन उसके पर्सपेक्टिव से सिखा ही नहीं सकता जो आप खुद से सीखोगे। सो what I think is कि self talk must be the first priority, and seeking help is also the second most important thing. यहाँ पे आपने 2 बहुत अच्छे पॉइंट्स कहे हैं, रोनित। वन इज अ वंडरफुल सेल्फ टॉक शुड बी योर बिगेस्ट प्रायोरिटी। सो मैं अपने आप को जैसे ट्रीट करता हूँ, जैसे अपने आप से बात करता हूँ, जैसे अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई, जैसे मान लो आई एम जस्ट डूइंग समथिंग एंड जस्ट आई ब्रोक समथिंग, तो बोलूंगा क्या इडियट हूँ यार मैं, कैसे हाथ है मेरे, व्हाट क्लमजी आई एम। सो इस तरह का सेल्फ टॉक, ये धीरे 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 इतना ज्यादा हो जाता है कि यू जस्ट कीप ऑन सेइंग नेगेटिव अबाउट यू इनसाइड योर हेड, बिकॉज यहाँ पे आपके बुरा मानने वाला कोई नहीं है। Hmm. नाउ कंपेयर दैट सिचुएशन विद अ बेस्ट फ्रेंड। देयर इज योर बेस्ट Hmm. फ्रेंड, यू कीप ऑन सेइंग नेगेटिव थिंग्स, वो बेस्ट फ्रेंड आपके साथ में हैंग आउट करना थोड़ा कम कर देगा। Right. फिर आपको समझ आएगा कि Hmm. ओके, मे बी आई आई डिड समथिंग रॉन्ग। सो आप लोग बातें करोगे, ठीक करोगे, देन यू वर्क ऑन इट एंड देन इट्स गोना बी ओके। इसी तरह अपने साथ भी करिए, जिस तरह नाइस एक्सपेक्टेशंस आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ में आपकी रहती है, वैसे ही खुद के साथ में ट्रीट कीजिए। खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के उसके एक हितैषी, एक एक वेलविशर की तरह रहिए। इफ इफ यू वुड बी योर वंडरफुल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेलविशर, देन आपका सेल्फ टॉक आपको पॉजिटिवली और मोटिवेटेडली लाइफ को जीने में बहुत हेल्प करेगा। आप सिंपली
spend 10 minutes right now with yourself and remember कि मैं खुद से कितनी गलत बातें करता हूँ। क्या Hmm. मैं गलती होने पे अपने आप को मोटिवेट करता हूँ? डू आई से इट लाइक दिस? इट्स ओके। मिस्टेक होती है, नाउ इज द टाइम टू फिक्स इट बिकॉज ओनली यू कैन फिक्स इट। यू आर द चैंपियन। अगर आप ऐसी बातें खुद से करते हैं तो इट्स गुड। पर अगर आप वो इंसान है जो बोलते हैं अरे यार फिर तूने गलती कर दी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, यू विल नॉट बी एबल टू करेक्ट इट। ऐसी बातें खुद से करना स्लोली ब्रिंग्स यू Right. Like you mentioned about the friend thing. तो 20s में तो बेसिकली ऐसा होता है कि मतलब जब अपने अपने करियर में फोकस्ड हो जाते हैं तो वो साइमल्टेनियसली जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो छोड़ने लग जाते हैं. सो इज़ इट अ नॉर्मल थिंग या फिर एक दो फ्रेंड्स तो बना के रखो ही सही? इट्स ऑल अबाउट चॉइस। अगर आपके हम्म. फ्रेंड्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग है दैट यू नीड टू कीप बाउंड्रीज एंड हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा जाने वाला है, आपके फ्रेंड्स के साथ में आपकी लाइफ अच्छा जाने वाला है। बट जहाँ आपके बाउंड्रीज ब्रेक होते रहते हैं, जैसे कि देयर वाज अ फ्रेंड, वो 10 बजे भी कॉल करता था। So after I got married, I had to sit him down and tell him that no, it's not encouraged. Let's have the last call at 9 p.m. After that, I need my sleep and I need time with my partner. Okay. So he understood. So अगर बाउंड्रीज का नॉलेज आपको है, अगर आप उसे कम्युनिकेट करना जानते हैं, इट्स गुड फॉर यू। वो फ्रेंडशिप्स रहते हैं, फिर चले जाते हैं अदरवाइज। एंड इट्स हम्म. नथिंग इज बैड फॉर यू। डोंट वरी इफ यू आर थिंकिंग कि मेरे साथ में फ्रेंड्स हैं वो छूट रहे हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग। यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स। डोंट बी ओवर अटैच्ड। किसी को उतना केज फील मत करवाओ। गिव देम स्पेस, दे विल कम बैक। लाइक मैं इस कॉन्सेप्ट को, ये जो सेल्फ हेल्प वाला जो टॉपिक है, मैं ऐसा समझता हूँ कि फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है कि ये ना एक फिल्म की तरह अगर आप ले तो आप खुद की फिल्म के पिक्चर के हीरो हो. यू जस्ट हैव टू बी बेस्टेस्ट परसोना अमंगस्ट ऑल. क्योंकि ये टाइम जो है 2015 नहीं चल रहा है, 2016 नहीं चल रहा है, ये चल रहा है एआई का ज़माना. एंड पीपल आर competing with each other. So you have to be, being a man, you have to be good at everything. एवरीथिंग मतलब अगर 10 चीज़ें हैं तो 7 से 8 चीज़ों में अच्छा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ काम में आ जाए. फॉर इंस्टेंस, देर इज़ अ थिंग, इंसिडेंट विच आई कैन शेयर विद यू. लाइक इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल, मेरे जो जीजू हैं, देर इज़ अ इंसिडेंट जहाँ पे ना 3-4 चीज़ें आई एम नॉट अवेयर ऑफ दोज टॉपिक्स, बट मेरे जीजू बहुत अवेयर थे उस बारे में. एंड थ्रू मेडिकल की चीज़ें ले लो, एंड 3-4 चीज़ें, हाउ टू डील विद द प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, जो टर्मिनोलॉजीज थी, दे मतलब ही जस्ट वेंट ऑन चैट जीपीटी एंड टर्मिनोलॉजीज उन्होंने सर्च कर ली. तो जो छोटी छोटी माइन्यूट जो चीज़ें हैं जो हमने कभी फिगर आउट ही नहीं करी कि यार इतनी फिनिश्ड वे में, इतनी ट्रांसपेरेंसी वे में उन्होंने कमिट कर ली. एंड यू नेवर नो कि वो चीज़ कहाँ काम में आ जाए आपके बिहेवियर के अंदर ही. सो आई गेस whoever watching this podcast, यू नो, आपका टेक भी मैं इस पर जानना चाहूँगा कि यू नो समटाइम्स वी से कि बीइंग अ मैन इज़ नॉट दैट ईजी which society portrays the scenario on ourselves. So what's your opinion on this? Okay. So being a man is not easy indeed, because there is no comparison with women. There is no comparison with the other gender. But the point here is कि we must consider जो जो अगला फेस कर रहा है. If we're talking about men, we must consider कि वो लोग they are doing their best. हो सकता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, हो सकता है कुछ मेन जो हैं अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाए, दे कुड नॉट अर्न इनफ मनी, दे कुड नॉट गेट सेटल्ड दैट सून। अगर आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं, कीप ऑन एनकरेजिंग देम, बिकॉज मैन एक चीज में बहुत अच्छे होते हैं, दे दैट इज अडेप्टेबिलिटी टू द चैलेंजेस। women are amazing in that, but we are talking about the different challenges. जो physical challenges हैं, जो you can put yourself through a different kind of torture. Men are amazing in that. Men should understand that this is their biological evolution. और you know skills acquire करना हुआ, being the man of the house हुआ,
इन सब चीजों में you look up to a guy, you look up to a man of the house. So just we just want to consider that this person is doing their best. At least we can appreciate or acknowledge वो क्या कर रहा है. That's it. Because I'm a very very free speech kind of a person, advocate of this stuff. कि yes, you do recognize and encourage men in your house. अभी इंटरनेशनल मेंस डे गया है, Hmm. and you know it is a good effort as the international community कि हम इस चीज को recognize कर रहे हैं. Women have done a lot. Hmm. नारी शक्ति बोली जाती है. शक्ति Hmm. इसलिए बोली जाती है क्योंकि वो जननी है. पर इसी के साथ में हमें जो दूसरा जेंडर है उसके तरफ भी देखना बहुत जरूरी है. एट द सेम टाइम वी कैन नॉट नेग्लेक्ट वन एंड फोकस ऑन वन. सो टू बैलेंस थिंग्स आउट we need to encourage and acknowledge the efforts of men. Yeah, totally agreed. Like being a man, sometimes we just love to be validated by loved ones कि हाँ appreciate कर दिया है and you just top on the way. Who doesn't? I mean, it Hmm. benefits everyone in the society. सो लाइक वही बात आती है कि आप खुद के लिए खुद ही हो. नो वन इज़ कमिंग टू यू एंड ड्रैगिंग यू कि भाई ये कर. आई थिंक इट्स द टाइम कि हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ एजुकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है एंड यू कांट एस्केप दैट फैक्ट. Yes, indeed. In the quest of being, the best, be the best version of yourself. यस. इतना खुद को पिन डाउन ना करिए कि यू नो यू विल यू विल बी लाइक नोबडी एल्स. कैसे भी ना बचो फिर आप. बी लाइक योर बेस्ट सेल्फ. यू हेयर टू डिस्कवर हु यू आर, नॉट हेयर टू डिस्कवर कि क्या मैं किंग बन सकता हूँ इस पूरे वर्ल्ड का, क्या मैं बेस्ट हो सकता हूँ. देर इज नो बेस्ट. देर इज जस्ट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. You're here यस. to explore. Exploration is not finalization. आगे भी ऐसे समय आएंगे जब आप चेंज होंगे, जब आपके फिलोसफीज चेंज होंगे, कुछ नए चेंजेस आपके मेंटल स्टेट में आएंगे, आपके चॉइसेस में आएंगे, आपके बॉडी में आएंगे, आपके रूटीन में आएंगे, हर जगह. सो नथिंग इज फाइनल. सो डोंट टेक दैट प्रेशर कि मुझे खुद के लिए कुछ करना ही है, आई एम फेलिंग एंड ऑल. Just enjoy the life. This is the most wonderful year of your life. 20s to 30 is wonderful year of your life. That was my favorite phase of my life because जितना सेल्फ डिस्कवरी उन सालों में हुई उतनी अब होना पॉसिबल नहीं है. राइट. सो या विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच Paritosh for your time. And you like to add something about the recent things which is going to happen, the the thing which you have mentioned. Yes, let me share a wonderful news with everyone. Since I'm a life coach, I talk a lot about leadership and inner freedom. I am coming up with a wonderful one-day retreat in Jaipur. It is known Okay. as Uday, and it will give you a 1 day of stay, tasty food, and lots of healings. अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं वेकेशन पे जाऊं और मेरा दिमाग एकदम सही हो जाए, Mm-hmm. this is the vacation you need, where guaranteed results, guaranteed healings will be there. अगर आपको you need to take some pressure off, you need to practice some meditation, you need to be in touch with the nature, और आप चाहते हैं कि जो भी आपको रिजल्ट्स उस जगह मिले वो आपके साथ में ज्यादा समय तक रहें, तो come to Uday, which is happening on December 13th. And if if you are interested in signing up, just DM me or Ronit, and we'll take care of the rest. I just need 1 day of yours. That's it. All right, then, audience, looking forward to that event. Also, I will be mentioning the links in the description, so people just check it out. And once again, thank you so much, Paritosh, for your time. We'll see you in the next one. That was our time, audience. Thank you so much. Thank you, Ronit. It was wonderful here. Yeah, likewise.